عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے، سواگت ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے مثنی الاسم، یعنی تثنیہ کا یوز کس کے طور پہ؟ ایز اے مضاف۔ اس سے پہلے ہم نے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کا تثنیہ کس طرح بنتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے یہی تثنیہ جب مضاف ہوگا تو اس میں کون سی چیز ڈراپ ہوتی ہے، اس کا اعراب کس طرح ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم لوگ ڈیٹیل سے انفارمیشن حاصل کریں گے۔ تو ہم لوگ کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری انفارمیشن ہمیشہ کی طرح کہ آپ لوگوں کو جو کلاس لی جاتی ہے پی پی ٹی کے ذریعے، اس کی پی ڈی ایف آپ کو نظام اکیڈمی 22 یہ آپ کا آفیشیل ٹیلی گرام چینل ہے، یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا ریویژن کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر کلاس اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، اور کوئی کمنٹ ہے، کوئی سجھاؤ ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے کوئی احباب ہیں جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ شیئر بھی کریں۔ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بغل میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب ہم لوگ کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو سلائیڈ میں دکھ رہا ہے اسم المثنی یوزڈ ایز اے مضاف، یعنی ہماری اس سے پہلی 2 کلاس تثنیہ کے بارے میں ہو چکی ہے۔ اب آج کی کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر یہی تثنیہ مضاف ہوگا، جب مضاف ہوگا تو اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا، تو اس کے مضاف ہونے کی شکل میں اس پر کون سا اعراب آئے گا، اس کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو ٹیبل میں دکھ رہا ہے، کیا لکھا ہے؟ کتابانی الولد۔ 2 ہے، ایک تو الولد ایک الگ اسم ہے یعنی سنگھیا ہے، ناؤن ہے، اسی طرح کتابانی اے تثنیہ ہے۔ اب ہم اگر کتابانی کی نسبت ولد کی طرف کریں گے تو کس طرح اس کا اعراب آئے گا؟ تو اب اس کے سامنے آپ دیکھیں گے لکھا ہے کتابا الولد۔ تو اس سے ہمیں ایک رول پتہ چلا کہ اگر ہم تثنیہ نومینیٹو کیس میں ہے یعنی حالت رفعی میں ہے، اگر اس کا ہم مضاف بنائیں گے، اس کو اضافت کی شکل میں یوز کریں گے تو آخر کا نون ڈراپ ہو جائے گا، یعنی نون ساقط ہو جائے گا، نون گر جائے گا۔ ہمیں ایک مثال کے ذریعے ہمیں ایک رول پتہ چلا، کیا؟ جیسے کتابانی تھا، کتابہ الولد، یعنی دا 2 books آف دا بوائے، یعنی لڑکے کی 2 کتابیں۔ اب ہم دوسری مثال لیتے ہیں، یہ آپ کی فیمینن کی مثال یعنی مؤنث کی مثال ہے، جیسے نافذۃن تھا، اس کا تثنیہ کیا آئے گا؟ نافذتانی۔ آگے کیا ہے؟ غرفہ۔ نافذۃن ونڈو یعنی کھڑکی کے لیے یوز ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا الغرفہ، غرفہ کس کے لیے؟ روم یعنی کمرے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے، اب اگر ہم نافذتانی کا تثنیہ لائیں، نافذتانی کو تثنیہ کے ساتھ میں اس کو ہم مضاف بنائیں تو کس طرح کا اعراب آئے گا؟ آپ اس کے سامنے دیکھیے، نافذتا، آگے کیا ہے؟ الغرفہ، یعنی دا 2 windows آف دا روم۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ چاہے وہ مؤنث ہو، چاہے وہ مذکر ہو، چاہے میسکولین ہو یا فیمینین ہو،
अगर वो हालत रफ़ई यानी नॉमिनेटिव केस में है, अगर हम उसकी इजाफत करेंगे यानी उसको हम तरकीब में मुज़ाफ बनाएंगे तो आखिर का नून साकित हो जाएगा, गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तस्निया की अलामत दो थी, एक आपका नून और एक अलिफ, लेकिन नून तो साकित होगा लेकिन अलिफ बाकी रहेगा। और ये भी हम आपको बता दें कि अलिफ इसलिए बाकी होता है ताकि कुछ तो उसकी पहचान बाकी रहे कि ये तस्निया है, यानी ये डुअल का सेगा है। अगर वो भी साकित हो जाएगा अलिफ, तो वो तो सिंगुलर हो जाएगा, वाहिद हो जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये तस्निया है कि नहीं। तो तस्निया की एक अलामत को हम बाकी रखते हैं, किसको? हालत रफ़ई में अलिफ को और नून को गिरा देते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बी वाले कॉलम में हम देखेंगे कि पहली सूरत हमारी क्या बनी थी कि हमारा तस्निया हालत रफ़ई यानी नॉमिनेटिव केस में था। अब यही तस्निया अगर जेनेटिव केस में हो जाए या इसी के साथ एक्यूजेटिव केस में हो जाए, तो आपको मालूम था इस केस में या और नून के साथ उसका तस्निया बनता है। जैसे इब्नैनी, तो नून से पहले या से पहले फतहा और नून पे जेर यानी कसरा आता है हालत नसबी और हालत जर्री में। इसके बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ रखा है। तो क्या है? लिइब्नैनी खालिद। अब हम अगर ऐसी तरकीब है जिसमें तस्निया से पहले प्रीपोजिशन यानी हरफ जार लगा है, इसको अगर हम तस्निया बनाएंगे तो किस चीज़ को ड्रॉप करेंगे, उसको अब इस टेबल में हम देखेंगे। क्या है? लिइब्नैनी खालिदुन। अब हम इसको जब तस्निया करेंगे यानी इसको जब हम मुज़ाफ बनाएंगे खालिद का, यानी खालिद मुज़ाफ इलैह और इब्नैनी को मुज़ाफ बनाएंगे, तो क्या ड्रॉप होगा, क्या साकित होगा, इसको हम देखेंगे। क्या है? लिइब्नई खालिदिन, यानी खालिद के दो बेटे। फॉर द टू सन्स ऑफ खालिद, यानी खालिद के दो बेटों के लिए। आप समझ गए? क्या आएगा? हम नून को गिराएंगे, चाहे हालत रफ़ई हो, वहां हमने नून को गिराया। इससे पहले वाले टेबल में हमने देखा नून को गिरा दिया लेकिन अलिफ को बाकी रखा। इसी तरह अगर हालत नसबी और जर्री जिसमें या और नून पे कसरे के साथ आता है, इसमें भी हम नून को गिराएंगे लेकिन या को बाकी रखेंगे। और या को बाकी क्यों रखते हैं? ताकि हमें पता चले कि ये तस्निया है और हालत नसबी या हालत जर्री में है। दूसरी मिसाल लेते हैं। अब सदीक़ैनी, मिन है पहले तो इसलिए हालत जर्री में आया, या नून पे कसरा और या से पहले फतहा। तो मिन सदीक़ैनी राशिद, यानी राशिद के दो फ्रेंड, यानी राशिद के दो मित्र, दोस्त। अब इसको जब हम मुज़ाफ बनाएंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? मिन सदीक़ई, ये सदीक़ैनी था, नून को हज़फ किया तो सदीक़ई रह गया, यानी मिन सदीक़ई राशिदिन, यानी फ्रॉम द टू फ्रेंड्स ऑफ राशिद, यानी राशिद के दो दोस्तों से। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम सी वाला कॉलम देखेंगे। सी वाला कॉलम क्या है? ये है, देखिए, किताबा अल वलदी। मुझे इससे पहले आपने देखा था ऊपर वाली जितनी मिसाल हैं वो हालत जर्री की हैं, क्योंकि उससे पहले प्रीपोजिशन है और वो जेनेटिव केस में यानी मुदाफ हो रहा है। तो आपको मालूम है कि तस्निया का एराब हालत नसबी और जर्री में या से पहले फतहा और नून पे कसरा, और हालत रफ़ई में अलिफ और नून पे कसरा आता है। अब एक किताबानी अलवलद था, अब हम किताबा की इजाफत अलवलद की तरफ करेंगे, नून को गिराएंगे, क्या हो जाएगा? किताबा अलवलद।
यानी द टू बुक्स ऑफ द बॉय, ये आपका क्या बन गया, मुबतदा। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में ये भी आएगी कि ये जो मुदाफ मुदाफिले से मिल करके जो तस्निया हमारा तरकीब में मुब्तदा भी वाक़ होगा और इसी तरह उसके आगे ख़बर भी आएगी जो कि नकीरा होती है। और देखिए जदीदानी, और ये भी हम जानते हैं कि मुब्तदा ख़बर में हम जेंडर यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन और इसी के साथ साथ नंबर यानी वाहिद तस्निया जमा का भी एतबार करते हैं, एक सानियत रखते हैं, उसकी तरह एक रूपता लाते हैं। तो किताबा अलवलद, तो असल में क्या था, किताबानी था, तो किताबा अलवलद, यहाँ हमने नून को साकित किया, लेकिन जब इसकी खबर आएगी तो क्योंकि ये तस्निया है, तस्निया की अलामत क्या बाकी है, अलिफ, तो इससे हम उसकी खबर लाएंगे, वो भी तस्निया लाएंगे क्योंकि नंबर का ख्याल रखेंगे। तो क्या बनेगा, किताब अलवलद जदीदानी, यानी द बुक्स ऑफ द बॉय, यानी द टू बुक्स ऑफ द बॉय, यानी लड़के की दोनों किताबें क्या हैं, आर न्यू, यानी नई हैं। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं, नीचे देखिए क्या है, हादानी अल खिताबानी, खिताब माने होता है लेटर यानी पत्र, जिसको आप खत कहते हैं। अब इसमें इशारा मुशारुन इलैह, हादानी क्या है, इसमें इशारा, और खिताबानी क्या है, मुशारुन इलैह। आपको मालूम है कि हादा का तस्निया हादानी आता है, तो ये इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर के आपके मुब्तदा बनेंगे। तो हमने क्या सीखा, आपका मुब्तदा मुदाफ मुदाफ इलैह भी हो सकता है, इसी के साथ मुब्तदा इसमें इशारा मुशारुन इलैह भी हो सकता है। इससे हम ये कायदा निकाल सकते हैं। तो हादानी अल खिताबानी यानी दीज टू लेटर्स। अब क्या आगे, मिन सदीक़ई राशिदीन, क्या था, सदीक़ैनी था, लेकिन सदीक़ैनी की इजाफत हमने की, यानी इसको मुदाफ बनाया, किसका, राशिद मुदाफिले का। अब जब मुदाफिले होगा तो हम आखिर से नून को साकित करेंगे और कुछ अलामत बाकी रखेंगे। हालत नस्बी जर्री में या है तो इसलिए या को बाकी रखा, क्या पढ़ दिया, सदीक़ई, मिन सदीक़ई राशिदीन। तो दीज टू लेटर्स आर फ्रॉम राशिद्स टू फ्रेंड्स, यानी ये जो दो खत हैं ये राशिद के दोनों फ्रेंड के हैं, दोनों दोस्तों के हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, हादानी, तो यहां सिर्फ इसमें इशारा ही आपका क्या बनेगा, मुब्तदा। हादानी मुब्तदा हो गया, क्या है, तस्निया है। अब जब ये मुब्तदा है तो उसकी खबर भी तस्निया बनेगी। इब्ना हामिदिन, ये क्या था, इब्नानी था, इब्नुन माने बेटा होता है यानी सन, और उसका तस्निया इब्नानी था, लेकिन जब उसका हम मुदाफ बनाएंगे तो नून को साकित कर देंगे, क्या हो जाएंगे, हादानी इब्ना हामिदिन, दीज टू आर हामिद्स टू सन, यानी ये दोनों हामिद के बेटे हैं। फिर हम नीचे वाली मिसाल लेते हैं, ये क्या है, तानिका, आपको मालूम है तिलका का तस्निया तानिका आता है, तानिकल कुर्रा सतानी, इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिल करके आपके मुब्तदा यानी उद्देश्य, उसके बाद क्या, विधेय यानी खबर आएगी। तानिकल कुर्रा सतानी यानी दीज टू नोटबुक्स, यानी दोनों नोटबुक्स क्या हैं, लिइब्नई यानी इब्नैनी था, लिइब्नई खालिदिन यानी खालिद के दोनों बेटे के लिए हैं। तो इब्नुन ये इब्नैनी था, आपको मालूम है हालत नस्बी और जर्री में नून को भी गिराते हैं और या को बाकी रखते हैं, हालत रफ़ई में अलिफ को बाकी रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तानिकल कुर्रा सतानी लिइब्नै खालिदिन, यानी दोज टू नोटबुक्स किसके हैं, आर फॉर खालिद टू सन, यानी खालिद के दोनों बेटे के हैं। अब हम आगे चलते हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब यही चीज़ जो मैंने मिसाल में जिसकी तरफ इशारा किया है उसका एक मर्तबा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं स्लाइड के साथ।
आपने इससे पहले पढ़ रखा है, पहली क्लास में क्या पढ़ा था कि तस्निया का एराब हालत रफ़ई में अलिफ और नून के ज़ेर के साथ आता है। इसी के साथ हालत नसबी और जर्री में क्या आएगा, या और नून के कसरे के साथ आता है। ये आपने इससे पहले पढ़ रखा है। और हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है, चाहे हालत नसबी आए, जर्री आए या रफ़ई आए, हमेशा आप नून पे कसरा ए लाजिम आएगा। इसको आप जहन में रखिएगा। तस्निया है तो नून पे ज़ेर आएगा, चाहे नोमिनेटिव केस हो, एक्यूजेटिव केस हो या जेनेटिव केस हो। अब आगे और हमें क्या देखना है, यही नून जब मुज़ाफ होगा तो क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी साकित हो जाएगा जेनेटिव फ्रेज में। यानी किस फ्रेज में, यानी मुज़ाफ वाले फ्रेज में। और अलिफ किस में, हालत रफ़ई में। और या किस में, यानी जेनेटिव और एक्यूजेटिव केस, यानी हालत नसबी और जर्री में बाकी रहेंगी, नेवर ड्रॉप्ड। हमने बताया था, इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ अलामत हम तस्निया की बाकी रखेंगे, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये वाहिद है कि तस्निया है। तो हालत रफ़ई में अलिफ को बाकी रखेंगे, और हालत नसबी और जर्री में किसको हम बाकी रखेंगे, या को। वही चीज़ बताई जा रही है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें टेबल में और किन किन चीज़ों को जहन में रखना है। आपको मालूम है कि किताबानी था, नाफिज़तानी था, लेकिन जब हम इसको मुज़ाफ बनाएंगे तो क्या होगा, नून जो है साकित हो जाएगा, क्योंकि वलदुन के तरफ हमने मुज़ाफ बनाया था, गुरफतुन की तरफ मुज़ाफ बनाया था, तो इसलिए नून क्या हो गया, नून उसका साकित हो गया पहले टेबल में। और जैसे था किताबा अलवलद, नाफिज़ता अलगुरफ़ा, दोनों मिसाल हमने पहले टेबल में देखी थी। लेकिन अलिफ को हम साकित नहीं करते नोमिनेटिव केस में। क्यों? क्योंकि अगर अलिफ भी साकित हो जाएगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये तस्निया था कि नहीं था। अब हम आगे चलते हैं, और हमें क्या इसमें देखने की ज़रूरत है, और हमें देखेंगे अब कि ये तो हालत रफ़ई में था, हालत रफ़ई यानी नोमिनेटिव केस में अलिफ को बाकी रखते हैं। इसी तरह अगर वो मजरूर है, क्योंकि अगर तस्निया से पहले हरफ जार आए, जैसे लिइब्नैनी मिन सदीक़ैनी, तो क्या होगा, उसमें भी हम नून को साकित करेंगे, लेकिन या को बाकी रखते हैं। जैसा कि मैंने मिसाल में भी आपको बताया था कि एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस में या को बाकी रखेंगे, ताकि तस्निया की अलामत बाकी रहे, हमको पता चले कि ये तस्निया है। अब हम आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें हमने आपको मिसाल ही में बता दी थी। और इसी के साथ हमने क्या सीखा था कि हमारा मुब्तदा क्या होता है जेनेटिव केस में, यानी मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिल करके भी मुब्तदा होता है, और इसी के साथ इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिल करके तरकीब में मुब्तदा, और उसके बाद ख़बर आती है। और मुब्तदा ख़बर में हम जेंडर और नंबर का भी एतबार रखते हैं। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि अलिफ और या, यानी हालत रफ़ई में यानी नोमिनेटिव केस में हम अलिफ को बाकी रखेंगे, और एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस में किसको बाकी रखते हैं, या को बाकी रखेंगे, ताकि ये अलामत तस्निया की बाकी रहे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। वही चीज़ जो हमने बताई है, अब इसको मज़ीद जहन में बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिसाल लेकर के उसी टेबल की उसका एनालाइज करते हैं, तहलील करेंगे, यानी जायज़ा लेंगे, जिसको कहते हैं हम विश्लेषण करेंगे। जैसे किताबा अलवलद क्या था, किताबानी था। किताबा अलवलद मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिल करके मुब्तदा, उसके बाद जदीदानी जो कि नकिरा है, यानी प्रेडिकेट खबर बनेगी। तो किताबा अलवलदी जदीदानी, वही कहा जा रहा है कि इसको हमें हमेशा याद रखना है कि जब मुब्तदा डुअल है तो ख़बर भी डुअल आएगी, यानी हम उसमें
नंबर और जेंडर का एतबार करेंगे, सिमिलैरिटी को बाकी रखेंगे। तो किताबा तस्निया था इसलिए जदीदानी हम लाए हैं। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, किताबा अलवलदी क्या बनेगा, मुब्तदा, उसके बाद वाला खबर। और नून क्या होता है, नून को डिलीट करते हैं, यानी नून को हज़फ कर देते हैं, किसमें, इजाफत की शक्ल में। जैसे किताबानी था, हमने क्या कह दिया, किताबा अलवलदी। यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। दूसरी मिसाल हम लेते हैं। दूसरी मिसाल किस चीज़ की लेंगे, देखिए, हादानिल खिताबानी, हमने पहले पढ़ रखा यही मिसाल। हादानी क्या था आपका, हादा का तस्निया, इसमें इशारा। खिताबानी लेटर का तस्निया, मुशारुन इलैह। हादानी अल खिताबानी, इसमें इशारा, मुशारुन इलैह से मिल करके मुब्तदा। हादानिल खिताबानी, दोनों क्या हो गए, मुब्तदा। मिन सदीक़ई राशिदिन, यानी सदीक़ई क्या था, सदीक़ैनी था, पहले हरफे जार आ गया तो मजरूर बन गया। मजरूर होकर के जब उसको जो मुज़ाफ बनाएंगे तो नून गिर जाएगा और या को बाकी रखेंगे अलामत के तौर पे। तो मिन हरफे जार, सदीक़ई मुज़ाफ, राशिदिन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिल करके मजरूर, जार मजरूर से मिल करके आपकी खबर बनेगी तरकीब में। अब पूरा जुमला जुमला इस्मिया यानी मुब्तदा और ख़बर यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बनेगा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। हमने रिकैपिचुलेशन भी कर लिया, यानी सबक का इआदा भी कर लिया। अब ये सबक हमें पूरी तरह हमारे जहन में बैठ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, यानी मश्क भी कर लेते हैं, ताकि ये कायदा हमारे जहन में पूरी तरह बैठ जाए। पहले है अरबिक के कुछ सेंटेंस हैं, वही तस्निया वाले जो कि मुज़ाफ बनेंगे। अब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश हम मेयार समझ करके, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज समझ करके इंग्लिश ही का हम यूज़ करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो इसका। तो अब क्या है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जनाहा अत्ताइरती कबीरानी। देखिए ताइरुन माने परिंदा होता है, अगर ताइरा ता के साथ उसका मतलब प्लेन यानी हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ के दो पर यानी जो दो उसके हैंड होते हैं क्या हैं, बड़े हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ के दोनों पर, दोनों तरफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो वही है जनाहा अत्ताइरती कबीरानी। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे किसमें, इंग्लिश में। क्या आएगा, जनाहुन को क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसको कहते हैं विंग्स। द क्या कहेंगे, टू। देखिए टू हम समझने के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर फसीह ट्रांसलेशन यानी स्टैंडर्ड करेंगे तो टू नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, टू को आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, द विंग्स। क्योंकि इंग्लिश में या तो वाहिद या तो जमा, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, बीच में उसका तस्निया नहीं डुअल नहीं आता। तो क्या कहेंगे, विंग का विंग्स। टू विंग्स किसके, ऑफ प्लेन। टू विंग्स ऑफ प्लेन, प्लेन के दो बाजू क्या हैं, हम क्योंकि जमा इसलिए आर लाएंगे। क्या है, कबीरानी। कबीरानी के लिए लार्ज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ बिग का इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़े हैं। मिस्रा अलबा बैनी मफ्तूहानी, यानी दरवाज़ा के, मिस्राउन मतलब होता है शटर, दरवाजे के जो शटर हैं क्या हैं, खुले हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे, द, अब टू तस्निया होता है, इंग्लिश में तस्निया आता नहीं, तो क्या हम कहेंगे, शटर्स।
2 shutters, फिर ऑफ, आगे क्या है, बाबाइनी मतलब डोर, ऑफ द डोर्स आर क्या है, मफ्तूहानी यानी ओपन, अकरबा अस्साअती वाकिफतानी यानी घड़ी की दो सुइयां, सुइयां इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो अकरबुन को हम बनाते हैं हैंड, क्योंकि घड़ी के जो एक मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई, ये दोनों क्या है, एक घड़ी के हैंड है यानी हाथ हैं। तो इंग्लिश में अकरबुन का ट्रांसलेशन हैंड से करते हैं। किससे करेंगे, हैंड से। तो क्या हुआ, अकरबा अस्सा वाकिफतानी यानी घड़ी की जो दोनों सुइयां वो क्या है, बंद है, यानी घड़ी आपकी बंद है, हो सकता है सेल ख़त्म हो गया हो। तो उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, क्या करेंगे, द यानी अस्सा यानी घंटे की, घंटे वाला हैंड, द आवर हैंड्स, आवर हैंड्स का मतलब अकरबुन अकरबुस्साह यानी ये जो आपकी घड़ी है, जो आपका घंटे वाली, क्योंकि वो एक सुई जो है घंटे के बारे में बताती है, एक सुई सेकंड के बारे में। तो आवर हैंड्स, उसके बाद हम क्या लाएंगे, आर लाएंगे क्योंकि जमा है, वाकिफतानी यानी स्टैंडिंग यानी स्टॉप्ड, स्टैंडिंग यानी खड़ी है। आगे क्या है, हामिदुन व राशिदुन, पहले हम क्या लिखेंगे, हामिद एंड राशिद, ये दोनों क्या है, नेम है। हामिद व राशिद हो गया। अब क्या है, जमीला महमूदिन यानी हामिद के महमूद के क्या हैं, क्लासमेट हैं, जिसको हम कहते हैं कलीग, यानी उनके साथ में रहने वाले, उनके साथ पढ़ने वाले। जमीला महमूदिन, तो हम कहेंगे आर महमूद क्या है, कलीग। अब आगे चलते हैं, हादानिल वलदानी यानी ये दोनों लड़के क्या हैं, सदीक़ा राशिद यानी राशिद के दोस्त हैं। तो हादानी यानी हादा का तस्निया है, तो क्या कहेंगे, दीस टू वलदुन, वलदुन के लिए क्या कहेंगे, बॉयज आर क्या है, सदीक़ा राशिद। तो पहले हम राशिद लाएंगे, हमने पढ़ रखा है कि अपॉस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं, जब वो जानदार चीज़ हो यानी ह्यूमन बीन है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लाते हैं, ना कि ऑफ लाते हैं। तो राशिद्स फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। अब हम आगे दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हमारे कुछ सेंटेंस हैं इंग्लिश में, उसी पे यानी तस्निया जो मुदाफ होता है, इसका हम ट्रांसलेशन किस में करेंगे, अरबिक में करेंगे, और वाविल साइन यानी एराब लगाते हुए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्या है आपका, द टू मैंगोस ट्री यानी मैंगो के दो दरख्त आर ड्राइड यानी सूख गए हैं। तो इसका हम तर्जमा किस तरह करेंगे, ट्री के लिए शजरतुन आता है,
शजरा ता, शजरतानी था, नून को हज़फ के अलिफ को बाकी रखा, शजरता। मैंगो के लिए मांजू का लफ्ज़ आता है। आर ड्राइड, जाफ, जाफतुन, जाफतुन माने होता है खुश्क होना यानी सूख जाना, तो हम कहेंगे जाफ फतानी, यानी शजरता अलमांजू जाफतानी। द टू विंडोज ऑफ द टू रूम्स आर क्लोज्ड, यानी दो अलग अलग रूम के दो अलग अलग विंडो यानी खिड़कियां क्या है, बंद हैं। इसको हम क्या कहेंगे, नाफिजतुन कहते हैं खिड़की को, नाफिजा तानी था तो नाफिजता। अब आगे क्या है, दो रूम के लिए हुजरतुन यानी हुजरतैनी, हुजरतैनी, नाफिजता हुजरतैनी, यानी कमरे की दोनों खिड़कियां क्या है, आर क्लोज्ड यानी गाइबतानी। गाइबतानी। क्लोज्ड, क्लोज के लिए यानी गाइबतानी, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लोज के लिए हम क्या कहेंगे, मुगलकतानी। क्या कहेंगे, मुगलकतानी, यानी हम इसको हम पहले मिटाते हैं। क्या आएगा, मुगलकतानी। क्लोज्ड है ना, क्लोज मतलब होता है नहीं बंद होना, यानी मुगलकतानी। मुगलकतानी, जी अब ये सही हो जाएगा। हामिस टू डाटर्स आर एब्सेंट, यानी हामिद की दोनों लड़कियां क्या हैं, मौजूद नहीं हैं। तो हम क्या कहेंगे, हामिस टू डाटर्स यानी इब्नता, इब्नता हामिदिन क्या है, एब्सेंट है, गाइबुन तो गाइबतानी। आगे क्या है, दीज टू गर्ल्स आर फॉर साजिद टू फ्रेंड्स, यानी ये दोनों लड़कियां साजिद के दोनों दोस्तों की हैं। यानी दीज टू गर्ल्स, ये दोनों लड़कियां, आर फॉर साजिद टू फ्रेंड्स, यानी साजिद के जो दोनों दोस्त हैं उनकी वो लड़कियां हैं, कहा ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहेंगे, हातानी, गर्ल्स के लिए फतातुन का लफ्ज आता तो फतातानी, हातानी अल-फतातानी फॉर साजिश टू फ्रेंड, ली सदीक़ई। आपको बताया गया था कि उसको हम हज़फ कर देते हैं नून को, लेकिन या को बाकी रख, ली सदीक़ई। आगे क्या है, क्या है, साजिद, साजिदिन। आगे है, द कलर ऑफ दीज टू शर्ट्स इज अट्रैक्टिव, कलर के लिए लौनु, लौनु दीज टू शर्ट्स हाज़ैनी, अल-कमीसैनी।
लौनु हाज़ैनिल क़मीसैनि, इन दोनों कमीज़ के रंग क्या हैं? अट्रैक्टिव यानी आकर्षक हैं, जिसको देख करके तबीयत माइल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? जज़्ज़ाबुन माने होता है आकर्षक। जज़्ज़ाबुन, लौनुन जज़्ज़ाबुन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम आखिरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, आपके सामने छोटे छोटे जुमले दिए हुए हैं। ये जुमले आपके किस में हैं? ये जुमले आपके वाहिद में हैं। किस में हैं? वाहिद में हैं। और हम इनका क्या बनाएंगे? तस्निया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तस्निया बनाएंगे। अब चलते हैं। इंदी उरूबिया, तो इसको हम क्या कह देंगे? इंदी उरूबिया, इसको हम क्या कहेंगे? इंदी रूबियतानी। क्या कहेंगे? इंदी रूबियतानी। इंदी रूबियतानी, तस्निया बन गया आपका। आगे क्या है? मा फी यदी का, तो क्या कहेंगे? मा फी यदई का, यदई, क्योंकि यहाँ हम बाकी रखे नून को गिरा दिया, यदैनी था असल में। आ उख्तु का, आ उख, उख्तुन को उख्तानी था, उख, आ उख्ता, आ उख्ता का, क्या तुम्हारी दोनों बहन। मुमर्रिज़तुन को क्या कहेंगे? मुमर्रिज़तान, यानी नर्स हैं। मुमर्रिज़तानी। आगे क्या है? हादल मुहंदिस, हादा को क्या हम बना देंगे? हादानी। मुहंदिस को मुहंदिसानी। अमरीकी जुन, अमरीकी, अमरीकी यानी। आगे क्या? हादी, हादी का, हादा का हादानी, हादी का हातानी बनता है। हातानी। जमीलतुन का जमीलतानी होता है, जमीलता, क्योंकि मुदाफ बनाएंगे। हातानी क्या है? जमीलता हिंदिन। जमीलता हिंदिन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि ये जो तस्निया है, अगर इसको हम मुज़ाफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मुज़ाफ, तो हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जर्री में इसका किस तरह से एराब आएगा। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप आगे आपको पैराग्राफ दिया जाता है और उस पर एराब यानी वावेल साइन लगाने के लिए कहा जाता है, अगर आप इस बारीकी को समझेंगे कि हालत रफ़ई में अलिफ बाकी रहेगा, हालत नस्बी जर्री में या बाकी रहेगा, इसका एराब किसके साथ आता है? हालत नस्बी जर्री में या से पहले फतहा, नून पे कसरा, हालत रफ़ई में अलिफ और नून के साथ आता है। और जब मुज़ाफ होगा तो हज़फ होगा सिर्फ नून, और उसमें अलिफ की अलामत बाकी रहेगी, इसमें या की अलामत बाकी रहेगी। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बस आज के लिए इतना ही। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।